صاحب اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا میں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ماشاءاللہ ہم نے خطاب سنا ہے ان آیات کی تفسیر کے لیے، تو بہت خوبصورتی سے ایک تو انہوں نے حج کا سارا پس منظر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور حج کے اندر جو فلسفہ ہے کافی حد تک وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ آج تک ماشاءاللہ بچپن سے لے کر مجھے ایک چیز جو ہے وہ بڑا حیران کرتی تھی، یہی کہ مطلب ساری عبادات جو ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن حج کا معاملہ جو ہے اور اس کے خاص طور پر جو ارکان ہیں ان کا، یہ چیز تو اس پہ تو ایمان ہے الحمدللہ، اور اس پہ تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے پورا مسلمانوں نے کرنا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ آخر طواف اور وقوف عرفات ہے، رمی ہے، باقی جو مناسک حج ہیں تو ان کا کس لیے ہے، یہ مطلب ایک ریچول کی شکل ہے، تو یہ ریچولز اسلام ایک مطلب ہر چیز کی پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ بیان کرتا ہے، تو حج کا معاملہ جو ہے یہ اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان پہلے میں نے نہیں سنا تھا، کل سے شروع کیا، پہلے خود سنا ماشاءاللہ لیکن مکمل نہیں سن سکا تھا کیونکہ یہ آخری والا حصہ جو ہے یہ میں نے کل نہیں سنا، کل جو جتنا ہم نے حصہ پڑھا ہے تقریباً وہ اور تھوڑا سا اور میں نے کل تک یہ سنا تھا، تو اس نے بالکل بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ذہن کے اندر وہ ماشاءاللہ بہت سے سوالات جو تھے وہ حل کر دیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کچھ اور چیزیں بھی دماغ میں آ گئیں ان کی باتیں سن کے، جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ حج کا جو معاملہ ہے کہ حج کی فرضیت، اس کا فلسفہ، یہ بس ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تو بالکل اس پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم سارا کچھ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا اور ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلی مین چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور آپ کے طریقے کے مطابق ہم کرتے ہیں، ہمارے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے۔ لیکن کیونکہ ہم دنیا کے اندر ہر چیز کی توجیحات ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز کی وجوہات ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے جو فوائد ہیں ان کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے، تو حج کے معاملے میں ایک چیز جو ہے نا وہ میرے دماغ میں آئی، جو کل میں نے ایک فکرہ پڑھا تھا انہی آیات کی تفسیر میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے بارے میں آپ میں سے اکثر افراد ماشاءاللہ جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ استاد تھے، اور یہ بڑی ایک مطلب لطف والی بات بھی ہے، اور بہت ایک اچھی چیز ہے ماشاءاللہ کہ اس دور کے اندر جن لوگوں نے اسلام کو ایک مختلف طریقے سے ان لوگوں تک پہنچایا ہے کہ جو لوگ پڑھا لکھا طبقہ تھا، وہ جو ٹریڈیشنل علماء ہیں ان کی بات سنتے ہوئے اس کو کچھ لگتا تھا کہ یہ شاید کچھ ایسے معاملات ہیں جو یہ ہمیں جس طرح سے بتا رہے ہیں شاید اسلام میں ویسے نہیں ہیں، تو دو افراد ہیں جنہوں نے ان کو بڑے خوب طریقے سے پیش کیا ہے، ان میں ایک تو ڈاکٹر صاحب ہے ماشاءاللہ، بنیاد مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے لگا دی، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تفسیر کی، کچھ علماء کو ان کے ساتھ اختلافات ہیں کچھ چیزوں میں، کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے اور اس سے ہمیں کو بہت زیادہ اس کو خطرناک چیز نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسلام کی انڈرسٹینڈنگ شروع دور سے ایسے ہوتا آیا ہے، جو ہمارے آج ہم جن کو اپنے بڑے بڑے امام کہتے ہیں نا، ہمارے جو فقہ کے امام ہیں ان میں شدید اختلافات ہیں چیزوں کو ایکسپلین کرنے میں، لیکن اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپس میں لڑتے تھے یا انہوں نے کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کی ہے، انہوں نے فقہ کا مطلب سمجھنا، دین کو سمجھنا اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، جیسے کل ہم نے ایک واقعہ ڈاکٹر صاحب نے علیہ رحمہ انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ جو قربانی کی جاتی ہے حج کے دوران، اب اس میں جو فقہ حنفیہ کے ماننے والے ہیں جیسے پاکستان میں، ہندوستان میں، سینٹرل ایشیا میں، ترکی کے اندر زیادہ تر، اور مصر کے اندر بہت سے لوگ، اور مڈل ایسٹ میں جو اپر والا مڈل ایسٹ ہے تو ان علاقوں میں لبنان وغیرہ شام میں، وہاں پر کیونکہ فقہ حنفیہ کے ماننے والے بہت سے لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہیں فقہ حنفیہ کے، تو اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ گوشت کھا سکتے ہیں خود بھی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ صدقہ کی طرح ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اب یہ دیکھیں یہ بالکل
अपोजिट दो चीजें हैं। एक ये है कि आप उसको सदका, और सदका जो है वो खुद तो नहीं इंसान ले सकता ना, सदका किसी को देना है, जरूरतमंद को। और एक इमाम ये फरमा रहे हैं कि नहीं वो सदका नहीं है, वो शुक्राने का है और आप उसको खुद भी खा सकते हैं। तो ये कितना शदीद मुख्तलिफ चीजें हैं दो, लेकिन हम दोनों के इज्जत की निगाह से देखते हैं। कुछ मुसलमान एक को फॉलो करते हैं, कोई दूसरी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए इल्मी मबाहस जितने हैं दीन के अंदर, उनमें हमें जो है ना इतना ये नहीं लेना चाहिए कि एक जो अगर किसी आलम ने किसी चीज के बारे में कुछ सोचा है, अगर उनके बुनियादी अकायद इस्लाम के मुताबिक हैं, तो बाकी उनके जो फिका के मसाइल हैं वो मुख्तलिफ चीजें हैं, उनमें इख्तलाफ हो सकता है। तो दो अफराद की मैं बात कर रहा था, एक डॉक्टर साहब की और दूसरे गांधी साहब है। गांधी साहब के साथ हमारे बहुत से इख्तलाफात हैं बहुत सी चीजों में, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनको कोई आलम इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जिस तरह से उन्होंने कर दिया है। तो मतलब ये उनका एक, दोनों का, डॉक्टर साहब का और गांधी साहब का। डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह तकरीबन तमाम मकतबा हाई फिक्र में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है, अगरचे कुछ लोगों ने उनके ऊपर सवालात कुछ चंद एक चीजों में उठाए हैं, तो उसमें उन्होंने फिर ये कहा कि मुझसे मतलब, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, तो हो सकता है एक्सप्लेन करने में मुझसे गलती हुई हो, वो इस चीज को सीधा सीधा तस्लीम करते थे। तो लेकिन जिस तरीके से उन्होंने माशाल्लाह कुरान पाक को एक्सप्लेन किया है, लोगों को इस काबिल बना दिया उन्होंने माशाल्लाह कि वो कुरान पाक से बड़े अच्छे तरीके से कुरान पाक को वो समझ सकते हैं, और कुरान पाक के जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात दिए हैं उनको हम अपनी रियल लाइफ में जब हम देखते हैं तो सीधी सीधी रहनुमाई जो है ना वो उससे हासिल करते हैं। तो गांधी साहब का भी मामला इसी तरह से। तो अब ये हज का जो मामला है, इसमें मैं ये बात कर रहा था कि हज के बारे में मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब ने कल एक बात लिखी थी कि हज के जितने अहकामात हैं, ये देखिए इंसान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, तकवा की तरफ। और तकवा की जो फाइनल स्टेजेस है वो क्या है, इंसान अपने आप को भूलकर, अपनी जो उसका मादी वजूद है उसको भूलकर वो खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाए, इतना करीब हो जाए कि जो दुनियादारी है वो भी उससे बहुत पीछे रह जाए। अब जब इंसान दुनियादारी को मुकम्मल तौर पर छोड़ देता है ना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अपनी लाइफ को मुख्तस कर लेता है, तो कहते हैं जो अगला मरहला शुरू होता है ना फिर वो आ जाता है रहबानियत का। इस्लाम ने वहां पर दरमियान में ये रहबानियत और ये जो पहला मामला था, इनके दरमियान में दीवार खड़ी कर दी कि इस दीवार से आगे नहीं जाना, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। तो हज के दौरान जब एहराम बांध लेते हैं तो उसके बाद के जितने अहकामात शुरू होते हैं वो इंसान का जो इनर सेल्फ है उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए है। घर पीछे रह गए तीन चीजें जो कि इंसान के मुआशरे के अंदर जिनका बुनियादी किरदार है और वो तकरीबन हर दफा पेश आती रहती हैं। एक ये है इंसान के अज़दवाजी मामलात, कि इंसान का अपनी बीवी के साथ ताल्लुक, और इसमें ये इस हलाल ताल्लुक पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में इस पे इंसान अपनी बीवी की तरफ खुश होकर देखता है तो उस पे भी अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर देते हैं। मियाँ बीवी आपस में इख्तलात करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस पे भी अजर देते हैं कि इन्होंने एक हलाल तरीके को इस्तेमाल किया है, ये किसी हराम की तरफ नहीं गए। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत भी है, लेकिन हज के दौरान इससे भी मना फरमा दिया गया। और फिर हज के दौरान लड़ाई झगड़े से मना फरमा दिया गया। तो ये देखिए ये आम जो हमारी जिंदगी है उसके अंदर ये चीजें जो है ना, ये इंसान के अज़वाजी ताल्लुकात, इंसान का मुआशरे के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ तरह की लोगों के साथ इंसान का वास्ता पड़ता है, और उस वास्ते के दौरान इंसान के लाजमी बात है कि तू मैं लोगों से होती है, तो उस चीज से मना फरमा दिया। और इसके अलावा तो ये चीजें जो है, जब इनसे एक तीसरी चीज मेरे ज़हन में अब आयत में से निकल गई वो क्या थी, जी तीसरी चीज ये थी कि कोई गलत काम नहीं करना हज के दौरान, मतलब इन तीन चीजों से मना फरमाया। एक हो गया मियाँ बीवी के ताल्लुकात, वो भी इंसान नहीं कर सकेगा, फहश कोई नहीं कर सकेगा, या कोई ऐसा काम नहीं कर सकेगा आम मुआशरे के अंदर जो इंसान कभी कभार कर गुजरता है, किसी को गाली दे दी, किसी के बारे में बुरा कह दिया, किसी को जो है वो बारे में बुरा सोच लिया, इन तमाम चीजों पे पाबंदी लगा दी और लड़ाई झगड़े पे भी पाबंदी लगा दी।
तो खालिसतन इंसान अपने मुआशरे से निकल कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर दाखिल हो गया। जब उस बारगाह में दाखिल हो गया, सारे के सारे पीछे मामला पीछे रह गए। अब इसका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ, और अल्लाह तबारक व तआला ने दरमियान में वसीला किन चीज़ों को बनाया है, उन मनासिक को, कि जो इसने अदा करने हैं। अब मनासिक जो है ये देखिए, ये पहले पहले इंसानों ने किए हुए हैं, जैसे कि सफ़ा और मरवा की जो सई है, ये सईदा हाजरा ने की थी। तो अब उनकी सुन्नत को इंसान यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों पूरा कर रहे हैं? अल्लाह ने हुक्म दिया है, किया एक इंसान ने था, अल्लाह को वो अदा पसंद आई, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे लोगों के लिए ये चीज जरूरी करार दे दी कि ये जब हज करेंगे तो फिर ये सही करेंगे। तो यहाँ पर देखें फिर ध्यान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। उसके बाद बहुत कमाल की जो चीज है, वकूफे अरफात जो है, देखिए नमाजें हमारे ऊपर 5 फर्ज हैं, उनके लिए खास टाइम बताए गए हैं कि इन टाइम के अंदर नमाजों को अदा करना है, लेकिन उन नमाजों का जो तरतीब है, उन नमाजों की जो अदा करने के औकात हैं, उनको आम दिनों के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया। ज़ुहर और असर ये कसर करके इकट्ठी दोनों को जमा करके पढ़ने का हुक्म दे दिया गया। अगरचे सफर में इनका है कि सफर में आप दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उस अरफा के दिन, अरफात के क़याम के दौरान उस वकूफ के दौरान इनको ये कर दिया गया। फिर मगरिब की नमाज है। मगरिब की नमाज हमें पता है कि जी मगरिब शुरू होती है, सूरज गुरूब हो रहा है, तो उसके बाद कुछ देर तक अब मुख्तलिफ इमामों ने उसका मुख्तलिफ औकात उसके मुअय्यन किए हैं। तो अब लेकिन इसमें क्या फरमाया कि मगरिब की नमाज भी उस वक्त अदा नहीं करनी, वहां से चलो, वहां से जब चल निकलेंगे अगली मंजिल पे जब पहुंचेंगे तो वहां पे जाके आधी रात को पहुंचे हैं, सुबह जो है वो तहज्जुद के वक्त पहुंचे हैं, जब पहुंचेंगे तो वहां पर जाके ये इशा के साथ मगरिब को अदा करेंगे। देखिए ये तब्दीली कर दी। अब यहाँ पर भी क्या आ गया, अल्लाह का हुक्म, आम हालात में अल्लाह का हुक्म और, लेकिन इस दिन हज के दौरान अल्लाह का हुक्म और। तो इंसान का जो कनेक्शन है ना, वो मुकम्मल तौर पर उसकी रूह को इस चीज की तरफ लाया जा रहा है कि वो मानना है जो अल्लाह कहता है, वो करना है जो अल्लाह कहता है। जिंदगी वैसे होगी जो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है। जो उसने पहले कायदे रखे हुए हैं आम जिंदगी के लिए, कायदे भी तब्दील कर दिए और एक नया कायदा दे दिया कि इस दिन इस कायदे के मुताबिक तुमने गुजारना है। क्यों गुजारना है? क्योंकि ये मेरा हुक्म है। तो अल्लाह के हुक्म को समझ के तो इंसान का जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, वो फिर अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ, वो अल्लाह तबारक व तआला ने इस हज के अंदर बनाया है। और फिर क्या फरमाया कि मुझे याद करो, उस तरह याद करो जैसे तुम अपने बाप दादों को पहले याद किया करते थे। अरबों में तफाखर बहुत ज्यादा था ना, आज भी कबायली लोग जितने उन सब में तफाखर है। हमारे जो देहात है, देहात में जो मामला है वो तकरीबन कबायली है ना, बरादरियां वगैरह होती हैं। हम देखें वहां एक से एक बड़ा चौधरी बना हुआ होता है, हालांकि पल्ले उसके चाहे कख भी ना हो, लेकिन वो जब अपने बाप दादों की बात करता है तो बड़े तफाखर के साथ करता है कि मेरा बाप तो ये किया करता था, मेरा बाप ये था, मेरे दादे ने ये कारनामा सर अंजाम दिया, चाहे उन्होंने अंग्रेजों की जो है ना वो गुड़ों के आगे चारा डाला हो, लेकिन वो तफाखर करेंगे। तो अरबों के अंदर ये चीज थी, वो तो मतलब बहादुर कौम थी, तो उनमें भी ये चीज मौजूद थी कि वो अपने बाप दादों का जिक्र जो है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वो वहां पर बड़ी लंबी लंबी महफिलें लगाते थे और खुसूसी लोगों को फिर लाया जाता था कि जो कि मदा सराई करें उनकी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नहीं, यहाँ पर हक जो है जिक्र करने का वो मेरा है, मेरा जिक्र करो। तो अल्लाह इंसान के साथ अपने उस कनेक्शन को मजबूत से मजबूत करना चाहता है। अब देखिए फिर इस हज हज का जो मामला है ये फाइनल हो गया ना। इससे पहले क्या चीजें थी? इससे पहले इंसान को तैयार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम लोगों ने तैयार होना है। अब तैयारी के लिए मैंने परसों की जो हमारी गुफ्तगू थी उसमें भी ये बात सामने रखी थी कि इस तैयारी में, इस घर में आने के लिए, हज करने के लिए मुसलमानों के लिए जरूरी था कि उस शहर को पहले हासिल करें, और उस शहर में मौजूद थे कुफार, उन कुफार के कब्जे में था शहर, और उन्होंने अल्लाह के घर के अंदर बुत रखे हुए थे। और इस्लाम इस्लाम तौहीद का दर्स देता है, तो उन बुतों को वहां से हटाना उसके लिए जरूरी था, पहले कुफार के ऊपर गलबा पाया जाए। तो उस गलबे को पाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम किताल करो। किताल का हुक्म आ गया। किताल करने के लिए पैसे की जरूरत है, फरमाया अब इन्फाक भी करोगे। अब ये दो चीजें होगी। अब किताल के लिए जरूरत है एक तैयारी की कि जब जंग होगी तो पूरा दिन खाए पिए बगैर गुजारना होगा, तो उससे पहले फरमा दिया कि रोजे फर्ज कर दिए कि रोजे, ताकि तुम अपने आप को तैयार कर सको, भूख प्यास को बर्दाश्त कर सको, तो तुम्हारे अंदर एक सब्र आ सके। तो ये एक पूरा देखिए एक सिलसिला चलता है जो कि मुंतज होता है जाकर हज पे। और हज का बेसिक मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमा दिया? वत्तकू, कि अल्लाह तबारक व तआला का तकवा अख्तियार करो।
तो तकवा बुनियादी जो सबसे फाइनल चीज है कि जो कि इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो फाइनल डेस्टिनी रखी है इस दुनिया में, वो है तकवा, कि इंसान अल्लाह का तकवा अख्तियार करे। और तकवा क्या है? अल्लाह ने जैसा जैसा हज के अंदर जो कुछ हो रहा है कि नमाजें आम रूटीन में हम पढ़ते हैं, लेकिन हज में अल्लाह ने जैसा फरमा दिया वैसे हम पढ़ेंगे। और जैसे जैसे मामलात अल्लाह ने जहां जहां जो काम करने का हुक्म दिया है हम वहीं पर जाके करेंगे, जिस वक्त में हुक्म दिया है वहीं पर जाके करेंगे। तो ये हज का जो सारी इबादत है ये बेसिकली इंसान को उस चीज की तरफ लेके चली जाती है कि मैंने माननी है तो सिर्फ अल्लाह की माननी है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज में हम कहते हैं हम अल्लाह के सामने हाजिर हो रहे हैं, अल्लाह के दरबार में हमारी हाजिरी हो रही है। तो ये हाजिरी हम रोजाना जब लगवाते हैं, इस हाजिरी में हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ बातें कर रहे होते हैं। हम हमारी ये बहुत बड़ी सुस्ती है हम लोगों की जो अरबी जुबान नहीं जानते, मतलब हम लोग अरबी नहीं है, कि हम लोग नमाज के अंदर जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको समझते नहीं है। हमें चाहिए कि हम उसका तर्जुमा अच्छी तरह से पढ़ें, उसको हम देखें कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें हमसे क्या कह रहा है। तो उस चीज को हम देखें, फिर हमें पता चलेगा कि वो नमाज में तो मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर, अल्लाह के सामने हाजिर हो गया, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब मैं शुरू करता हूँ सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अब देखिए कितनी बातें मैं अल्लाह ताला की तारीफ में कर रहा हूँ। और फिर जब मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूँ औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद, तो सूरह फातिहा के अंदर हम इसकी तफसीर पढ़ चुके हैं, तर्जुमा माशाल्लाह पढ़ चुके हैं। कितनी बातें हैं जो हम सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह से करते हैं, वादे करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, पहले वादे करते हैं अल्लाह ताला से, फिर अल्लाह से हम दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और फिर कुरान पाक की वो सूरतें पढ़ते हैं। जब कुरान पाक की सूरतें हम बाकी की पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे बातें कर रहा है। ये अल्लाह की बातें हैं जो जब हम पढ़ते हैं, जब हमें पता चलेगा कि हम मिसाल के तौर पर कोई सूरत पढ़ते हैं, वो तीन व जैतून मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे जब कि कसम है तीन की और जैतून की, मतलब इंजीर की और जैतून की कसम है, तीन व जैतून। तो इसी तरह से कोई और सूरत हम पढ़ते हैं, तो हम उन सूरतों के अंदर जो मजमून है जब हम उसका जिक्र करते हैं, वल असर है मिसाल के तौर पर, छोटी सूरत की मैं बात कर लेता हूँ, वल असर, अल्लाह ने फरमाया कसम है मुझे वक्त की, इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान तो है ही खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर जिन लोगों ने ईमान ले आए वो खसारे में नहीं है, व आमिलुस सालिहात, और जिन्होंने फिर अमाल भी अच्छे किए ईमान के साथ साथ, ये खसारे में नहीं होंगे। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और उन्होंने एक दूसरे को हक बात की तलकीन की और एक दूसरे को सब्र की भी तलकीन करते रहे, तो ये लोग नुकसान में नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम जो है ना, वो हम देखिए नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं। अब अगर हमें उसके तर्जमे का पता होगा तो हम अल्लाह के करीब होंगे। तो जैसा नमाज एक बेसिक चीज है ना जो हमें अल्लाह तबारक व तआला की साथ मिलाती है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमारा राब्ता कायम करती है, तो उस राब्ते की जो इंतहा होती है ना एक इंसान के लिए अपने रब के साथ, जो उसका राब्ता है, उसका फिर मजहर हमें देखने में नजर आता है हज के दौरान। कि हज में जब उसमें खसूसी तौर पर ये फरमाया कि आखिर में देखिए ये आयात आई है जिनमें फरमाया कि जो लोग फिर ये कहते हैं वो हज के जब मुनासक अदा कर रहे होते हैं, फाइनलिटी जब आ गई हज की इबादत की, तो उसमें फरमाया कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया में ही दे दे, रब्बना आतिना फिद दुनिया, वो इस तरह से कह देते हैं, तो अल्लाह फरमाता है दे दूंगा लेकिन आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर फरमाता है कि लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे भी किस्मत वाले हैं, वो ये कहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। तो ये दुआ जैसा डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि तवाफ के दौरान पढ़ते हैं, तो ये दुआ हम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, नमाज के दौरान भी इसको हम पढ़ा करें। तो इस दुआ में देखिए क्या खूबसूरत चीज है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से वो सारा कुछ मांग लेते हैं जिसकी हमें इस दुनिया के अंदर जरूरत है और हमें अगली दुनिया के अंदर जरूरत है, और उस चीज से हम अल्लाह तबारक व तआला से उससे बचना मांगते हैं कि जो कि आखिरत में नाकामी वाले लोगों को जहां पर डाला जाएगा। तो हम अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह इस दुनिया के अंदर में हमें भलाई अता फरमा दे, आखिरत में हमें भलाई अता फरमाना। तो दुनिया की भलाई माल है भलाई वाला, बीवी है भलाई वाली, औलाद है भलाई वाली, दुनिया के अंदर जो कुछ भी हमें मिले वो ऐसा हो जिसके अंदर या अल्लाह भलाई हो। मैं तेरे से सिर्फ भलाई का सवाल करता हूँ, किसी ऐसी चीज का सवाल नहीं करता जिसके अंदर भलाई ना हो, या अल्लाह मुझे उससे बचा जिसके अंदर भलाई मौजूद ना हो। और फिर आखिरत की भलाई कि अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी भलाई आखिरत की जो अल्लाह ताला की रजा है, सबसे बड़ा अल्लाह ताला का इनाम जो जन्नतियों को मिलेगा वो अल्लाह तबारक व तआला की रजा के, अल्लाह ताला फरमाएगा मैं तुमसे राजी हो गया हूँ, कभी तुमसे नाराज नहीं होगा। ये सबसे बड़ी नेमत होगी जो जन्नतियों को जन्नत के अंदर अता फरमाई जाएगी। तो इससे पहले जो नेमतें हैं कि जन्नत का हुसूल, जन्नत की जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर जिनका जिक्र फरमाया कि ये नेमतें मिलेंगी, रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, आपसे मुलाकात। तो ये सारी चीजें जो है ये हम मांगते हैं और फिर अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा लेना, या अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा लेना। तो अल्लाह ताला ने इनका हुक्म फरमा दिया कि मुझे याद करो, और फिर जब याद करो उसके बाद जब हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, तो ये देखिए दुआ जो होती है ना वो राब्ते का सबसे आखिरी मरहला होती है कि पहले जब इंसान जाता है किसी अपने बड़े से मिलने के लिए, तो जाके उसकी तारीफें, उसके साथ बातचीत, और आखिर में जो अपना मुद्दा होता है वो बंदा उसके सामने रख देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो सबसे बड़ा है, और इंसानों के लिए सबसे बड़ी खुशी कि वो अल्लाह ताला के साथ मुलाकात करे। मुलाकात एक चीज होगी, दूसरा ये कि उस मुलाकात में वो उसका जिक्र करें, ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें। मुलाकात के लिए जो उसने प्रोटोकॉल रखा हुआ है हज के अंदर, उस प्रोटोकॉल को पहले पूरा कर ले, उस प्रोटोकॉल को पूरा करें। वो जात खुश होगी कि इस बंदे ने मेरे दरबार में आया है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ आया है, जो प्रोटोकॉल मैंने दिया हुआ था उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आया है, और जब ये मेरे दरबार में हाजिर हो गया है, इसने मेरी बड़ाई बयान की है। और जब हज के दौरान हम बड़ाई बयान अल्लाह की कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। हमारा फाइनल मुद्दा ये होता है कि या अल्लाह हमें दुनिया की भलाई अता फरमा, आखिरत की भलाई अता फरमा, और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। तो अल्लाह तबारक व तआला इंसानों से यही चाहता है कि इंसान तकवा अख्तियार करें, और उस तकवा के लिए जो मामला ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एंट्रेंस थी दीन के अंदर, इसके बाद नमाज थी, नमाज में एक ट्रेनिंग हुई, उसके बाद जो रोजे थे, रोजों में जिस्मानी ट्रेनिंग इस चीज की हो गई, जिस्मानी ट्रेनिंग इस चीज की हो गई कि मैंने अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना है, और इस के पाने के बाद जो जहाल और किताल का हुक्म, और फाइनली फिर हज, और हज में फिर आखिरी मुलाकात अल्लाह तबारक व तआला के साथ, कि मेरा मकसद जिंदगी का ये होगा कि मैं अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करूं, अल्लाह तबारक व तआला की मैं हर वक्त तारीफें करता रहूं, अल्लाह ताला की हमद बयान करता रहूं, और फिर मैं अल्लाह तबारक व तआला से वो मांगू जो कि मुझे चाहिए, कि दुनिया की भलाई, आखिरत की भलाई, और आग के अजाब से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना कुर्ब नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तकवा की दौलत अता फरमाए। इस दुनिया के अंदर अगर इंसान को तकवा की दौलत मिल गई, इंसान कामयाब हो गया, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी। लेकिन तकवा ये मामला जो है, जब इंसान कोई उसको फील हो कि मैं अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल कर रहा हूँ, अपनी मर्जी में नहीं कर रहा, ये मामला इंसान के लिए नाजुक बहुत ज्यादा हो जाता है। शैतान सबसे ताकतवर हमला इंसान के ऊपर कर सकता है, तो वो इस मामले में, इस मुकाम पर करेगा, क्योंकि ये इंसान की पीक का मुकाम है। इस पीक का मुकाम जो है, उसके ऊपर इंसान को ठहरने के लिए उसका ध्यान बहुत जरूरी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की जात की तरफ रहे, फिर अपनी जात की तरफ ध्यान ना जाए। जब इंसान पीक पे पहुंच जाए, देखें पीक पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और पीक पे ठहरना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पीक के दोनों तरफ जो है ना उतराई है, तो वहां पर ठहरना बहुत मुश्किल है। तो वहां पर ठहर वही सकेगा जिसका ध्यान फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ होगा। अल्लाह ने ये मुकाम जब इंसान को एक दफा दे देता है, फिर इंसान के ज़हन में ये ना है कि मैंने कुछ कर लिया, नहीं, फिर यही है जो किया मेरे अल्लाह ने किया, ये उसी का करम है, और अपने आप को ये ना समझे मैं कोई बड़ी चीज बन गया, नो, ये अल्लाह तबारक व तआला के पास है कि कौन बड़ी चीज बने है। इंसान इस पे शुक्र अदा करे। अल्लाह ने बार-बार कुरान के अंदर फरमाया है, फिर अल्लाह ताला का जब तुम्हें कोई पोजीशन हासिल हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि कोई भी काम उसकी तौफीक के बगैर नहीं होता। ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमें नेमत मिलेगी, वो अल्लाह की तौफीक से मिलेगी, और तकवा की नेमत जो है, ये जब इंसान को मिल जाएगी, इंसान को इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत मिल गई, जो कि इंसान को आखिरत में कामयाबी की तरफ ले जाएगी। और जब ये नेमत मिल जाए तो उस वक्त इंसान का हक बनता है कि फिर और ज्यादा शुक्र अदा करे अल्लाह तबारक व तआला का। फिर उसकी अपनी जात जो अपनी अना है वो उसके अंदर मौजूद नहीं होती। अगर उसके अंदर अपनी अना मौजूद होगी तो उसका तकवा कंप्लीट नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें वो तकवा अता फरमाए जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए पसंद फरमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इस दुनिया के अंदर रहकर अपनी जिंदगी को इस कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।